CAT is just a few weeks away and quant is giving you troubles. Maybe you're doing well in it, maybe you're doing okay in it, or maybe you're doing horribly bad in it. You could be facing any of these two or three problems. Problem number one is that, hey, I start solving questions, but the time goes by so fast that by the end of it, I've not even seen all the questions in my quant paper. And then when I get down to the analysis, I realize that, hey, there was so much more in the paper that I could have extracted. Problem number two would be that, okay, while time might not be the shortage, but when I get back to analyzing the paper, I realize that अरे मैं तो 6 मार्क्स और ज्यादा ला सकता था, 9 मार्क्स ला सकती थी, 15 मार्क्स और ला सकता था, whatever stories which you tell yourself. Or problem number 3 could simply be that, hey, you know what, I just feel I'm very weak in quant and I don't think I can solve more than 4 questions or 5 questions in it. My dear friends, at this point of time, more than probably what you need to learn in QA is also about how do you approach QA, how is the strategy, how is your test taking strategy. I am making this video a very short video because there is only so much I have to say to it, so that you can quickly calibrate whether your strategy is aligned to this or not. If you're failing, if you're not doing well, this is going to be important. Please watch it up till the end. The first thing which you need to see on your screen right now is that what is the score versus percentile of the QA section in the last 3 years. You will realize that there is a similar pattern. आप अगर 99 percentile QA में लाना चाह रहे हैं, which means you're very strong in QA, उसके लिए you can check what is the score. You will see that this score is nowhere close to the total score required or the total score of the QA section. There's nowhere close to it, which means what? Which means that even a topper, a 99 percentiler is not getting all questions right. Forget even getting all questions right. They're not even attempting all questions right. और अब तो मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए आप क्वांट में वीक हैं और आप ये कहते हैं कि यार मैं क्वांट में 95 परसेंटाइल भी ले आऊँ, बाकी VRC और DILR में तो मैं खींच दूंगा और परसेंटाइल ले जाऊंगा ऊपर, इवन दैट इज फेयर, तो 95 के लिए तो और भी कम मार्क्स चाहिए. व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस डेटा व्हिच आई एम शेयरिंग which I'm sharing with you, and why is this the starting point? The crux of this data is, my dear friends, that you need not even attempt the entire paper in quant. And to a lot of bright students this sounds so counterintuitive. यार आप क्या बात कर रहे हो, मुझे IIM अहमदाबाद जाना है और आप कह रहे हो कि जो IIM अहमदाबाद जा रहा है वो सारे क्वेश्चंस कर भी नहीं रहे, शायद देख भी नहीं रहे, प्रॉबेबली ऐसा कुछ है क्या? हाँ, सरप्राइजिंग है, बट ये फैक्ट है, सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. नाउ वंस यू नो दिस, व्हाट इज सपोज्ड टू बी योर अप्रोच? दिस इज वेरी अनलाइक अ VRC approach. You should watch my previous video on the VRC attempt strategy, where the title of my video is attempt all in VRC, and that's my मूल मंत्रा in VRC. भैया अगर आपको VRC में कुछ भी नंबर लाने हैं, you have to reach a point where you're attempting all questions in VRC. Because why? Because you cannot guarantee accuracy in VRC, especially if you're not very strong in it, especially if that's not your strength, which means that you need to attempt more questions and you have to waste no time. Just get solving, just get attempting in that. In quant it is different. In quant you can control accuracy. अगर आप वीक से वीक भी होंगे, आई एम वेरी श्योर एक्यूरेसी खराब नहीं होगी, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में प्रॉब्लम होगी कि सर मैं तो सर ना वो 20-22 क्वेश्चन में से सिर्फ मैं 4 ही कर पा रही हूं. हाँ, अगर कोई स्ट्रांग होगा वो कहेगा सर मैं 15 कर पा रहा हूं. तो जो वीक भी है वो एक्यूरेसी की वजह से वीक नहीं है, वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की वजह से वीक है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ज्यादा सवाल नहीं सॉल्व हो पाते. अब जब आपका क्वांट सेक्शन शुरू होगा, आपको एक सिंपल सा काम करना है. अपनी रफ शीट पे 3 कॉलम छोटे छोटे बना लीजिएगा. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. दिस इज द राउंड वाइज स्ट्रेटेजी of scoring a 99 percentile in QA. You would have heard me speak about it so many times. This needs to be put into perspective again. 3 कॉलम बना लिए छोटे छोटे से. अब आप क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, कैट के इंटरफेस में टॉप राइट पे एक होता है क्वेश्चन पेपर, वो खोल लीजिए. उससे आप सारे क्वेश्चंस को एज अ स्क्रॉल पढ़ पाएंगे, एक के बाद एक स्क्रॉल करते हो. आपको नेक्स्ट क्लिक करने की जरूरत नहीं है. अब आपका काम बहुत सिंपल है. पहले 3 मिनट आपको क्वांट पेपर में कुछ नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है और एक क्वेश्चन को पढ़ना है जल्दी से. और आपको ये इंट्यूशन डेवलप हो गया होगा, नहीं हुआ है तो अब आपको उस पे फोकस करना है कि क्या मैं अपने मॉक्स में फर्स्ट 3 मिनट्स में एक क्वेश्चन को स्कैन करके ये इंट्यूशन डेवलप कर पाया हूं या कर पाई हूं कि नहीं, कि हाँ ये मेरा राउंड 1 क्वेश्चन है, राउंड 2 क्वेश्चन है, राउंड 3 क्वेश्चन है. जो भी क्वेश्चन राउंड 1 लगता है कि हाँ ये बहुत सिंपल है, ये मैं अगर 2-2.5 मिनट मैंने स्पेंड करे कुछ ना कुछ कर लूंगा या कर लूंगी, बिकॉज फेमिलियरिटी है. राइट डाउन दैट क्वेश्चन नंबर अंडर R1. क्या क्वेश्चन नंबर 2 R1, क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 यार ये कर लूंगी बट इसमें ना टाइम लगेगा. पुट क्वेश्चन नंबर 3 अंडर R2. एंड इफ देयर इज वन मोर क्वेश्चन टाइप व्हिच यू थिंक दैट यार ये तो मेरे से होगा नहीं, अगर टाइम रहा तो मैं ये जरूर करना चाहूंगी, दैट इज R3. R3 टू मी व्हेन आई यूज दिस स्ट्रेटजी इज बेसिकली द क्वेश्चंस आई विल नॉट बी अटेम्प्टिंग एट ऑल, बिकॉज मेरी औकात ही नहीं है कि R2 के बाद मेरे पास R3 का समय हो. बहुत लोग होंगे जिनके पास होगा भी समय, तो ये सबके लिए वैलिड है. अब बाय द एंड ऑफ इट यू विल रियलाइज दैट ओके R1 R2 मिला के कंबाइन मिला के आपने कुछ 12 क्वेश्चंस स्पॉट कर लिए. दैट इज इट, दैट is your starting point. My dear friends, the golden statement is the moment you have crystallized your R1 and R2 questions, the number of questions
questions you have in R1 and R2 is the entire quant paper for you. Khatam baat. Suddenly you have reduced your quant paper from 20-22 questions to only 12-15 questions, whatever is your capacity. हो सकता है 8 हो सकता है मतलब 10 हो. That's it. Suddenly in the first 3 minutes, by doing this, by reducing the question paper, you have reduced not only the question paper but also your stress. अब तुम्हें टाइम क्लैरिटी पूरी है कि अच्छा भाई अब मैंने ये करके इस पेपर की डिफिकल्टी भी असेस कर ली है कि यार एक सेकंड, मैं तो हर बार सिर्फ 8 क्वेश्चन ही R1 में लिख पाता था, यहाँ पे तो मैं 11 क्वेश्चन R1 में, शायद पेपर इजी है यार, मैं हर बार 8 क्वेश्चन R1 में लिख पाता था, अब यहाँ दिख रहा है मुझे सिर्फ 5 ही मेरे R1 में, शायद ये पेपर टफ है. ये 3 मिनट लगा के आपने नॉट ओनली पेपर की डिफिकल्टी कर ली है असेस, आपको पता है अब एग्जैक्टली टाइम क्लैरिटी मिल गई मुझे कि यार अब मैं अगला 30 मिनट आराम से भी स्पेंड कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे टोटल सॉल्व ही करने ये 9-10 सवाल खत्म. अब आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रही कि यार टाइम खत्म हो गया, मैं लास्ट क्वेश्चन तक आया ही नहीं, बिकॉज मैंने क्या करना शुरू कर दिया, पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, नहीं हो रहा, आगे बढ़ते हैं, टाइम ही खत्म हो गया, लास्ट तक क्वेश्चन ही नहीं आपने करे. जब आप एनालिसिस में आते हो तो देखते हो अरे लास्ट में तो ये भी क्वेश्चन था, ये तो मेरी स्ट्रेंथ था, चार सवाल तो मेरे सही थे, 12 मार्क्स तो मेरे यहीं से ही आ जाते हैं. देन यू रिग्रेट बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट स्ट्रैटेजी इन दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई होप यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी. आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द स्ट्रैटेजी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, a very focused advice idea. You have to reduce your question paper. If you've understood it, this is very abstract but very important. If you've understood it, if this has given you an aha, do not forget to like the video, subscribe to the channel. Let me know in the comments what you think about it. Thanks a lot and goodbye.